12y चलिए बिल्कुल सही सर। C1 एंड C2 अलग अलग नहीं हो रहा। अरे कैसे नहीं हो रहा है? सुजीत जी बिल्कुल सही आंसर है आपका। ऐसे कैसे नहीं हो रहा है भाई? लास्ट 20 सेकेंड। ओके ओके सत्ती जी, ओके, नो इश्यू। ओके, come here. Now, my dear, tell me, there are two arbitrary constant here. Yes, sir, there are two arbitrary constant in the given equation. And my dear, if there are two arbitrary constant here, then we are eligible to differentiate the given equation in how much number of times? Sir, two times. So differentiate this equation one. Let us suppose this is your equation number one. Now differentiate this equation. This is y dash is equals to, this is 3 times of c1 e to the power 3x plus 4 times c2 e to the power 4x. Now this is your what? So this is my equation number 2. Now my dear, again differentiate. This is y double dash is equals to 9c2 e to the power 3x plus 16c2 e to the power 4x. This is your what? So this is my equation number 3. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Sir, for calculating the value of C1 and C2, we must have to solve the equation 2 and 3. Okay? Yes, sir. Now, my dear, so multiply by 3 in equation number 2. Yes, sir. So the equation number 2 is, Saji, nothing but what? Saji, this value is come out to be 3y dash is equals to 9c1 e to the power 3x plus of 12c2 e to the power 4x. And now, my dear, let us suppose this is your equation number 4. Now subtract 3 from 4. Yes or no? Now subtract equation 3 from equation number 4. So the value is come out to be 3y dash minus of y double dash is equals to minus of 4c2 e to the power 4x. Yes or no? Therefore, the value of c2 is come out to be how much? Therefore, the value of c2 is come out to be y double dash minus 3y dash divided by 4 times of e to the power 4x. Okay. Yes, this is 9c1. Okay. Low by. Good. Chaliye, this is the value of C2. Now we put this value C2 in any of the equation in either 4 or equation number 3. We put this equation in 4. We put the value here. Array. Come here. So the value is come out to be 3y dash is equals to 9. This is 9c1 e to the power 3x plus 12 time of y double dash minus 3y dash divided by 4 e to the power 4x into e to the power 4x. Now, my dear,
यहां से आप क्या वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे सर C1 वैल्यू। यस और नो, यस और नो। देन आप क्या करेंगे, देन पुट C1 and C2 value in equation number 1, yes or no? यस सर। बट यार मुझे ये बताओ, लेंदी नहीं हो गया बहुत? मुझे बताइए, बहुत लेंदी नहीं हो गया? C1 का निकाला, फिर C2 निकाला, फिर C1 C2 लिया, फिर यहां पर रखा, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं हो गया ये? चलिए आइए एक आपको शॉर्टकट बताता हूँ। ओके, शॉर्टकट नहीं है, अभी आपको जब थोड़ा सा आगे लेकर सेकंड ऑर्डर पे लेकर जाऊंगा ना, तो आप खुद ही बता देंगे। शॉर्टकट नहीं है ये, दिस इज अ रिजल्ट, जो आपको यहाँ पर शॉर्टकट का नाम दिया जा रहा है, ये एक रिजल्ट है। ओके चलिए माय डियर, आगे जाकर आप ना एक चीज पढ़ने वाले हैं, क्या? सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके यस, आप टेंशन मत लो यार, अभी तो फर्स्ट ऑर्डर हमने पढ़ा नहीं है, सेकंड ऑर्डर पे कहां बताएंगे, तो आपको बस अभी बता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है इसको आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मान लीजिए कि यस, आगे हम पढ़ेंगे, भाई भरोसा रखो। अगर आप बात करें और सर सोल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, अगर आप इक्वेशन की बात करें, आपका इक्वेशन क्या रहेगी सर? इक्वेशन इज y डबल डैश माइनस ऑफ a प्लस b इंटू y डैश प्लस ऑफ ए बी इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनो, अगर इस इक्वेशन के आप सोल्यूशन की बात करेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या होता था? अगर आपका सोल्यूशन क्या आया, आपके सोल्यूशन तो इसमें बहुत हो सकते हैं, बट अगर आप बात करें तो सोल्यूशन आपने क्या कहा, y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर ax प्लस ऑफ c2 e टू द पावर bx। यहाँ पर c1 एंड c2 आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ओके ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सोल्यूशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन होता था कब? जब आपकी जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, उसके रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, या टेंशन मत लेना, अभी आपको बताया जाएगा, अभी पहुंचने दीजिए वहां पर, फिर आपको बताया जाएगा, बट ये आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको ये शॉर्टकट भी पता रहे। ठीक है, तो ये शॉर्टकट नहीं है, दिस इज नॉट एन शॉर्टकट माय डियर। तो दिस इज, अगर आपकी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपकी कोई इक्वेशन है, उसके आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, उसके रूट निकाले और रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आए, तो आपका जनरल सोल्यूशन ये रहता था। तो आपका जनरल सोल्यूशन आपको पता चल गया, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी सर? डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगी। और ये कैसे आया भैया? बचपन में पढ़ा है, बचपन में पढ़ी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जल्दी से बताइए, बचपन में पढ़ी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें क्या होता था सर? यही तो होता था कि सर जी उसमें हम क्या करते थे सर, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ दिस इज सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड देयर प्रोडक्ट। आप कहेंगे सर जी सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स तो नहीं था मेरे लाल, क्या था आपका ये बताओ तो। सर जी क्या था आपका? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अल्फा प्लस बीटा आप लिखते थे कि नहीं? अरे बताओ, तो वह क्या होता था सर? सम ऑफ द रूट्स, यही रहता था आपका। तो माय डियर ये जो है ना ए और बी, ये आपके रूट्स ही हैं, ये आपके क्या का ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट ही है। तो आप अभी ये मान लीजिए बस कि हमारी इक्वेशन अगर y इक्वल्स टू c1 e टू द पावर ax प्लस c2 e टू द पावर bx के फॉर्म में दी हुई है, तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनेगी। इसका आपको और अच्छे से समझ आएगा जब मैं आपको सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस इक्वेशन बताऊंगा। अगर आप इस एग्जांपल पर जाएं तो यहां पर आप देखेंगे तो क्या होगा, एक ही लाइन में हो गया था। किसने आंसर सबसे पहले दिया था? सुजीत जी और सुमित जी ने।
किसने दिया था भाई आंसर? सबसे पहला आंसर दिया था सुजीत जी ने। सुजीत जी आपने ऐसे ही दिया था? जल्दी से बताइए। टेल मी सुजीत जी। यस सर। अगर आप इसको शॉर्टकट से जाएंगे तो आप क्या कहेंगे? सर जी ए की वैल्यू कितनी है यहाँ 3, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4। तो अब आप क्या करेंगे? सर जी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y डबल डैश माइनस सम, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4y डैश प्लस, अब आप क्या करेंगे? सर जी इन दोनों का प्रोडक्ट 3 इंटू 4y इज इक्वल टू 0। ये लो भाई, समझ आया? हाँ या ना? टेल मी टेल मी टेल मी। बोलो रे भाई, बोलो 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 बोलो। अब कर लेंगे इतने क्वेश्चन के बाद। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप में से अब कोई ऐसा होगा जिससे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ना हो। कर लेंगे सभी लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ नहीं सर, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को ही देखना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट से ही निकालना है। हाँ या ना? चल, बहुत ही बढ़िया यार, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आपने क्या कहा? हम ये सीख गए कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, हम ये सीख गए कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे। अब हमारे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पूरा 90% आपके क्वेश्चन गेट में किससे आए कि भैया जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन क्या। तो हेडिंग डालिए सभी लोग, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलिए भाई अब बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यार सोल्यूशन आपके ना कितने प्रकार से होते हैं? पहली चीज तो ये सोल्यूशन की अगर बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन की तो आप क्या कहेंगे? जल्दी से बताइए कितने प्रकार के होंगे? सर जी दो टाइप के। फर्स्ट वन इज व्हाट? सर जी जनरल सोल्यूशन। फर्स्ट वन इज व्हाट सर जी? जनरल सोल्यूशन। एंड द सेकंड वन इज व्हाट सर जी? पर्टिकुलर सोल्यूशन। हाँ या ना? जल्दी से बताइए यस और नो। यस सर, फर्स्ट वन इज जनरल सोल्यूशन एंड सेकंड वन इज पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो यार सर ये जनरल सोल्यूशन क्या किसे कहते हैं? अगर आपको इक्वेशन दी गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई, मींस अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग the arbitrary constant is known as the general solution. Means the solution of the differential equation in which the arbitrary constants are present is known as what? Is known as the general solution. Yes or no? Yes or no? Okay sir. And sir, what is the particular solution? What is the particular solution? The solution of the differential equation in which the arbitrary constants are not present. The value of the arbitrary constant is eliminated or removed by, with the help of what? Such with the help of boundary condition. Yes or no? मतलब क्या कहा? बाउंड्री कंडीशन की मदद से अगर आपने उसके आर्बिटरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दी और आपका जो सॉल्यूशन निकला था जनरल सॉल्यूशन, अब उसकी जो आर्बिटरी कांस्टेंट था उसे हटा दिया आपने, तो वह सॉल्यूशन अब हो जाएगा क्या? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और अगर आपने आर्बिटरी सॉल्यूशन के फॉर्म में ही आंसर दिया तो वह क्या रहेगा? जनरल सॉल्यूशन। जल्दी से बताइए। चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए, दूसरा क्वेश्चन आता है कि यार मुझे ये बताओ, जनरल सॉल्यूशन आपने कह दिया, हमने मान लिया, तो ये जो जनरल सॉल्यूशन है, इस जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिटरी कांस्टेंट आएंगे, ये कैसे पता चले? सिंपल सी बात है, इक्वेशन देखेंगे, जो उसका ऑर्डर रहेगा, जितने ऑर्डर की इक्वेशन है उतने हमारे आर्बिटरी कांस्टेंट आएंगे। हाँ या ना? चलिए तो आप क्या कहेंगे? जनरल सॉल्यूशन किससे कहते हैं? अ सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन ऑफ differential equation containing what? So number of arbitrary constant
इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट, और ये किसके बराबर हो, इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जल्दी से बताइए हाँ या ना। एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो आप क्या कहेंगे, a solution of differential equation obtained from general solution, obtained from what sir जी, general solution। जल्दी से बताइए यस और नो, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, जल्दी से बताइए समझ आया या नहीं। चलिए भाई, चलिए 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 चलिए, अब हम किसकी तरफ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे किसकी तरफ, अब हम मूव करेंगे सॉल्यूशन की तरफ। जनरल पर्टिकुलर हो कोई भी मतलब हो, हम उसको तो निकाल ही लेंगे। अब हम बात करेंगे सर जी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है इक्वेशन का, वह कितने टाइप की इक्वेशन आएगी आपकी, सर जी हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी वह कितने टाइप की डिवाइड करेंगे हम, टेल मी सर जी, दो टाइप में। ओके, फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या कहलाएगी सर, पहला हम टाइप किस पे करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड ऑन द ऑर्डर। तो आपकी कितने टाइप की होगी सर जी, दो टाइप की। फर्स्ट वन इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड द सेकंड वन आपका क्या होगा सर जी, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आया, टेल मी, समझ आया कि नहीं। यस सर, पहली कहलाएगी हमारी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरी कहलाएगी हमारी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ना मींस एक से ज्यादा जब भी ऑर्डर रहेंगे, दो रहे, तीन रहे, चार रहे, उससे हम कह देंगे क्या, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल। तो सबसे पहली हेडिंग डालिए, हम किसकी तरफ बात करेंगे सर, सबसे पहले हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे किसके सर, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। किसके सर जी, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हेडिंग डालिए मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने क्या कहा, कितने टाइप की हैं बता सकते हो, चल मी माय डियर, कितने टाइप पढ़ेंगे हम, यस सिक्स टाइप। यस, फर्स्ट वन इज, फर्स्ट वन इज वेरिएबल सेपरेबल। क्या कहा आपने, वेरिएबल सेपरेबल। मींस आपने क्या कहा भैया, वेरिएबल को इधर उधर करेंगे। और अगर आपने कहा जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करना चाहिए सर जी, बताइए क्या कहेंगे आप सर जी, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है ना, चम्मच से निकाल लो, घी गरम कर लो, दो में से कुछ कर लो भाई, क्यों उंगली टेढ़ी करनी पड़ रही। वैसे ही इक्वेशन आपकी वेरिएबल सेपरेबल थी, अब आसानी से हो नहीं रही है, तो आप उससे क्या करेंगे भैया, कुछ ना कुछ कर्म करके उससे हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ओके भाई, तीसरी लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम अगर इक्वेशन नहीं हो रही है तो उससे हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो मींस रिड्यूसिबल, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिफ्थ इज exact differential equation, exact differential equation। Sixth one is
reducible to exact differentiable. जल्दी से बताइए, 6 की 6 नाम याद रहेंगे? यार कोई जरूरत नहीं है नाम याद रखने की, अभी इन पर इतने इतने क्वेश्चंस करेंगे कि अपने आप आसानी से याद हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आए ना? चलिए भाई, चलिए 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 स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कौन सी? फर्स्ट वन इज वेरिएबल सेपरेबल। फर्स्ट वन इज व्हाट सर जी? फर्स्ट वन इज वेरिएबल सेपरेबल। चलिए भाई, साहिल जी का कहना है कि सर जी होमोजीनियस भी तो होती है, आप होमोजीनियस भूल गए। क्यों साहिल जी, ऐसा कहना है कि नहीं? बताओ यार। आइए साहिल जी, जो आप होमोजीनियस पढ़ने की कह रहे हो ना मेरे लाल, वो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में ही आ जाएगी। ओके, इसलिए नाम से फर्क नहीं पड़ता, आप टेंशन ना लो। आप जिसकी कह रहे हैं ना कि सर जी होमोजीनियस होमोजीनियस, वो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल से हो जाएगी, क्योंकि भैया ओवरऑल आपकी जो होमोजीनियस है उसे करते तो रिड्यूस ही है। ओके चलिए, आइए भाई वेरिएबल सेपरेबल की तरफ चलते हैं। यार सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। यार एक बात बताओ, एक एग्जांपल शुरू से चला आ रहा है, क्या आ रहा है भाई? dy by dx is equals to y by x and given is y of 1 is equals to 2। मेरे लाल, जब भी बाउंड्री कंडीशन गिवन रहे, इसका मतलब वो आपसे सॉल्यूशन कौन सा पूछ रहा है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अगर उसने नहीं भी लिखा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो भी आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही निकालना, क्योंकि उसने बाउंड्री कंडीशन आपको घुमाने के लिए नहीं दी। ठीक है, चलिए अब सुनिए, अगर आप इस इक्वेशन की बात करें तो आप क्या करेंगे? चलो इसे सेपरेट करना है, तो आपने क्या करा सर? दिस इज dy डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाय x। बताइए, वेरिएबल सेपरेट हुए कि नहीं? वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ही यह है कि आपका एक तरफ डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए, एक तरफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए, दोनों को आप एक साइड लेफ्ट हैंड साइड पे, एक राइट हैंड साइड पे, दोनों का अलग अलग सेपरेट करो और क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। और जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे वैल्यू क्या होगी? दिस इज log of y is equals to log of x plus of log of c। तो यहां से आप इसकी बात करेंगे तो log of y is equals to log of x into c। तो आपका क्या हुआ सर जी? y is equals to x into c। ये क्या हुआ सर? दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। दिस इज व्हाट सर? दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। बट आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन थी, तो आप क्या निकालेंगे सर? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या? एट x इक्वल टू 1 the value of y is equals to 2। तो आपने क्या कहा सर? 2 is equals to x equals to 1 into c। तो आपकी c की वैल्यू आ गई है 2, और जैसे ही आपकी c की वैल्यू आई, आप क्या करेंगे सर? इस c की वैल्यू क्या करेंगे सर जी? इस इक्वेशन में रख देंगे, तो आपका सोल्यूशन कौन सा जाएगा? जनरल सोल्यूशन। y is equals to 2 into x। तो इस जनरल सोल्यूशन से आपका कौन सा सोल्यूशन आ गया सर जी? पर्टिकुलर सोल्यूशन। बताओ भाई, समझ आया? मतलब सर इतना सिंपल एग्जांपल दिया क्यों था भैया? सिंपल एग्जांपल सिर्फ इसीलिए दिया था, आपको यही समझाने के लिए दिया था कि आपको क्या करना है सर जी? कुछ नहीं, इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें भैया वेरिएबल को सेपरेट करना है। एक तरफ हमें x वाले वेरिएबल, एक तरफ y वाले वेरिएबल, मींस एक तरफ डिपेंडेंट एक तरफ इंडिपेंडेंट, दोनों को सेपरेट करो और फिर कर दो क्या? इंटीग्रेट। ओके चलिए भाई, अब देते हैं आपको क्वेश्चन। dy by dx is equals to e to the power x minus y plus x square e to the power minus of y। करो तो भाई इसका सोल्यूशन।
लास्ट 70 सेकेंड। e टू द पावर सर एप्टीट्यूड की क्लास स्टार्ट होगी या नहीं? रवि जी अभी जो क्लास चल रही है उसका तो एडवांटेज लीजिए। जो चीज स्टार्ट हो जाती है आप उसका फायदा लेते नहीं है, जो चल रहा होता है उसका फायदा नहीं लेते हैं। जब उसको स्टार्ट करो तो स्टार्ट करने के बाद आप क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं। e to the power y is equals to e to the power x plus x cube by 3 plus c। राइट आंसर दो लोगों का आ गया भाई, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? यही है सर जी, चलिए तीन लोगों का हो गया, बाकी लोग? सेम। चलिए मनीष जी, चलिए भाई टाइम्स अप। मेरे लाल एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में आप चाहते क्या हो? क्वेश्चन में आपको पता तो रहेगा नहीं। एक बात बताओ, एग्जाम में एग्जामिनर लिख के देगा कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल सेपरेबल? बताओ, मेथड का नाम लिख के देगा क्या? नहीं लिख के देगा। और जब वह नाम लिख के देगा नहीं तो सर हमें स्ट्राइक कैसे करेगा कि ये क्वेश्चन किससे का? मेथड तो इतनी सारी। यस सर। मेरे लाल एक सिंपल सी बात बताओ, अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ी देर ध्यान से देखते थोड़ा सा, तो आपको क्या दिख रहा है कि सर जी e टू द पावर माइनस वाई ये दिख रहा है, एंड सर जी e टू द पावर माइनस वाई ये दिख रहा है। बताइए, आया ना? यस सर। और अगर e टू द पावर माइनस वाई यहाँ पर और e टू द पावर माइनस वाई यहाँ पर दिख रहा है, तो आप इतना ऐसा लिख सकते हैं, dy by dx is equals to e to the power x into e to the power minus of y plus of x square into e to the power minus y। आप क्या कहेंगे कि यस सर, आसानी से e टू द पावर माइनस वाई कॉमन लेके हम सेपरेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? dy by dx is equals to e to the power minus y लिया आपने कॉमन, दिस इज e to the power x plus of x square into e to the power minus of y। तो ये वैल्यू आ गई डिनोमिनेटर में, दिस इज dy by dx into 1 upon e to the power minus y, this is e to the power y is equals to e to the power x plus of x square। तो भैया सीधा सा काम करो ना, इससे e to the power y dy, इससे e to the power x plus of x square dx। अब बताओ क्या हुआ? क्या हो गया? अरे सर जी, वेरिएबल जो है सेपरेट हो गए, एक तरफ डिपेंडेंट वेरिएबल एक तरफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये क्या हो गया सर जी? वेरिएबल सेपरेट हो चुके, अब इंटीग्रेट कर दो। अब जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे क्या वैल्यू हो जाएगी? e टू द पावर y का इंटीग्रेशन e टू द पावर y, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 प्लस ऑफ c। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। जल्दी से बताओ भाई कितने लोगों का आ गया था? चलिए 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 चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डी वाई डी एक्स, माई डियर नेक्स्ट सेशन हमारा कितने पर? 11:30 पर। ओके, जल्दी से बताइए। यस, तो 11:30 से 1:30, क्योंकि यार कल किसका एग्जाम, मतलब एग्जाम था भाई 2 से, उन्होंने मना करा कि सर 2 पर मत रखिएगा। साइन व सर लास्ट स्टेप कैसे आया? अभिनव जी कौन सी लास्ट स्टेप? ये वाली e टू द पावर y का इंटीग्रेशन e टू द पावर y, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3। इसमें डाउट क्या था भाई अभिनव जी? इसमें डाउट क्या था? इंटीग्रेशन सर, ओके।
यार अभिनव जी, इतना बड़ा ये जो साइन लगाया ये इंटीग्रेशन का ही तो है। चलिए जल्दी से कीजिए। लास्ट 80 सेकेंड। सर जी ये क्लास कितने तक चलेगी? माय डियर, ये क्लास 11 बजे तक चलेगी। 11 से आधे घंटे का आपको बढ़िया ब्रेक मिलेगा। जो भी आपको करना है भाई, नाश्ता वगैरह कर लेना। फिर 11:30 से 1:30 तक चलाएंगे। सभी लोगों के लिए सेशन की लिंक मैंने पिन अप कर दी है। उस लिंक पर क्लिक करके भाई नोटिफाई में दबा लो ताकि आपका सेशन मिस ना हो। है y cos y प्लस साइन y साइन y प्लस cos y। नहीं, क्या कर रहे हो भैया? क्या नाम आपका डियर? बड़े लाल जी। cos y प्लस y साइन y प्लस cos y तो सिंप्लीफाई कर लो भाई उसे। और e की पावर, रॉन्ग आंसर। साइन y x 2 log x x स्क्वायर बाई 2। साइन जी आपका y साइन y तो लेफ्ट सही आया, राइट हैंड साइड की वैल्यू गलत है। सर इवनिंग में भी होगा सेशन? यस सुमित कुमार जी। y साइन y। यस रवि जी, योर आंसर इज राइट। योर आंसर इज राइट। y साइन y इक्वल्स टू log x x स्क्वायर प्लस c। यस श्रेया जी, योर आंसर इज राइट। आप मेरे टेलीग्राम से जुड़े हैं सुमित जी? जो लोग भी नहीं है भाई, मेरे टेलीग्राम पर सारी चीजें डिटेल्स मिलती हैं, आप टेलीग्राम पर एक्टिव रहिए। ये जब टेलीग्राम देखते देखते हो कि नहीं यार टेलीग्राम वगैरह। चलिए क्वेश्चन लेट मी सॉल्व। यार क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सब कुछ इसमें इंटीग्रेशन पर ही डिपेंड कर रहा था, बाकी सब चीजें तो आसानी से हो जा रही थी। क्या करेंगे आप कि सर जी y साइन y प्लस y cos y, और ये x के फॉर्म में, तो सर जी आप इधर इधर इसे सेपरेट कर दीजिए बस। दिस इज साइन y प्लस y cos y dy is equals to twice of x log x dx plus of x dx। जल्दी से तो भाई ये क्या हो गया? सर जी वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। और मेरे लाल अगर वेरिएबल सेपरेट हो चुके तो अब सब कुछ क्या डिपेंड करेगा इस पे बताइए? सर जी अब सब कुछ डिपेंड करेगा इस पे, क्या? इंटीग्रेशन पे, कि भैया आपको इंटीग्रेशन आता है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं भाई इंटीग्रेशन कितनों का आता है। एक बात बताओ, साइन वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर नथिंग बट व्हाट, माइनस ऑफ कॉस वाई। चलिए प्लस ऑफ। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत अब मुझे पता है इंटीग्रेशन y cos y करने में दिक्कत आई होगी लोगों को। y cos y dy इज इक्वल टू, चलिए इसकी अगर बात करें तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ x log x dx प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x dx। हाँ है ना? चलिए अब मुझे ये बताइए, इसमें आप क्या कहेंगे? सर दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन,
and this is my second function. जल्दी से बताइए यस और नो. यस सर. अगर मैं इससे अब इंटीग्रेट करता हूं तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस वाई. क्या लिखेंगे आप सर जी? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन differentiation of first integration of second dy. जल्दी से बताइए भाई, क्या कौन सा रूल कहते हैं इसको? सुना भी है कि नहीं? कौन सा रूल कहते हैं इसे? आइलेट रूल. यस. और अगर आप इसकी बात करें तो सेम आप इसमें भी क्या कहेंगे सर जी? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. इसमें क्या होगा फर्स्ट फंक्शन? जल्दी से बताइए. log. दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, दिस इज माय सेकंड फंक्शन. क्या कहेंगे आप सर जी? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. गुड मॉर्निंग दिलसाद जी, गुड मॉर्निंग. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. log x का डिफरेंशिएशन, दिस इज dy by dx, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड into dx. सर इज देयर एनी ट्रिक टू सॉल्व आइलेट इजीली? भैया आइलेट रूल जो है ना जनरल रूल है, वो सभी के लिए वैलिड है. अब उसमें ना अगर कुछ कंडीशंस लगा देते तो वो क्वेश्चन, वो जो है आपका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है उसके लिए. बट भैया इंटीग्रेशन की चीजें करनी पड़ेगी. आप देखिएगा ये जो आपके सामने इतना बड़ा फॉर्मूला लिखा है ना, इसको भी अभी मैं शॉर्ट ट्रिक से कर देता, आपको समझ भी नहीं आता. क्या कहते हैं उसको? लेबनेट्स. यस और नो? मैं इससे लेबनेट से कर देता, आपको समझ भी नहीं आता कि सर जी क्या कर दिया. तो इसलिए मैंने आपको जनरल से ही बताया कि वो जो ट्रिक है वो इंटीग्रेशंस वगैरह में आपको काम आएगी, जब आपको इंटीग्रेशन बताएंगे तब. ओके चलिए. दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी माइनस ऑफ cos y प्लस this is y. Tell me the integration of cos y. So the integration of cos y is sin y minus of integration. This is differentiation of y is sir ji 1. Integration of cos y is sir ji sin y. This is dy is equals to 2 times of this is log x into ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माय डियर? दिस इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ दिस इज इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव 1 by x, 2x का इंटीग्रेशन is 2x square divided by 2 ducks. This value 2 and this value 2 is cancel. This is value, this value is cancel. Means x dx बचा हमारा. चलिए भाई इंटीग्रेशन में मदद करिएगा, ठीक है. This is minus of cos y plus this value is y sin y, y sin y, and this value is sin y का इंटीग्रेशन क्या होगा सर जी? sin y का इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ cos y, और माइनस साइन एक पहले से है तो यहां पर क्या हो जाएगा सर जी? cos y is equals to. नाउ अगर आप इसकी बात करें, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ दिस इज 2 टाइम्स 2 का इंटू अगर आपने अंदर कर दिया तो ये वैल्यू हो जाएगी क्या सर? log x इंटू एक्स स्क्वायर. दिस इज log x इंटू एक्स स्क्वायर. ओके, अब ये 2 आपने अंदर कर दिया तो दिस इज माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? चल मी x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा सर जी? x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या सर? नथिंग बट एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ c. जल्दी से बताइए हाँ या ना. यस सर. चलिए इसे सिंप्लीफाई करिए भाई. this 2 is cancel out, this cos y is cancel out.
the values come out to be y sin y is equals to log of x into x square minus of x square। यार एक बात बताओ, ये एक्स स्क्वायर की एक वैल्यू आ कहां से रही है? कहीं ना कहीं पेज चेंज करने में भैया मिस्टेक हुई है। ये वैल्यू आ कहां से रही है? ऐसी नहीं आ सकती भाई। आप यस भी कह रहे हैं, कहां पर से दिक्कत हुई है भाई? कहां पर मिस्टेक लिखी है? ओहो हो, सर जी मिस्टेक कहीं पर नहीं लिखी है, मिस्टेक कहीं नहीं लिखी है सर जी। एक स्टेप हमने लिखी ही नहीं है। क्यों भाई? ये वाली टर्म तो लिखना ही भूल गए थे हम। दिस इज प्लस ऑफ इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स। यार आप लोगों से कह रहे हैं कि भैया पेज चेंज होता रहता है, तो यार आप बताते रहना। आप लोगों की भाई बता ही नहीं रहे हो। चलो, अगर आप बात करें किसकी, एक्स डीएक्स, तो ये हो जाएगा क्या? दिस इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ सी। this value is cancelled out, plus of c। This is the answer। जल्दी से बताइए समझ आया कि नहीं? टेल मी। चलिए 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 चलिए, तो एक बात बताओ, नेक्स्ट फॉर्म अब ब्रेक के बाद स्टार्ट करें कि अभी कर लें? जल्दी से बताओ। यार तुम लोगों में यूनिटी नहीं है यार, आप लोगों में यूनिटी नहीं है। कोई कहता है अभी करो, कोई कहता है सर ब्रेक के बाद। मतलब यूनिटी नाम की चीज ही नहीं है आप लोगों में। क्यों? जल्दी से बताओ भाई क्या करें? चलो यार बोर्ड कर लो। 10 मिनट का बचा एक टॉपिक मैं सोच रहा हूँ। चलिए भाई, हमारी भी बोर्ड की कदर होगी कि नहीं? चलिए हमारे भी बोर्ड का रहेगा भाई। ट्रू मतलब अभी करना है, और फॉल्स मतलब ब्रेक। चलिए भाई, ना करने वाले भाई विनर हो गए, कह रहे हैं ब्रेक ही चाहिए। सर आपने ट्रू करेक्ट कर रखा है भाई, तो ट्रू हमने इसलिए क्यों, क्योंकि हमारा मन था कि करवा देते हैं, और आप लोग जो है जीत गए। चलिए ये बताइए, सभी लोगों ने अपने आप को इनरोल कर लिया? जल्दी से बताइए, सभी ने अपने आप को नेक्स्ट सेशन के लिए इनरोल कर लिया? चलिए, तो सभी लोग ना यार, ये जो हाफ एन आवर है इसमें सेशन के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, ताकि सभी लोग इसमें कनेक्ट हो सके। कहाँ से करेंगे सर? यार लिंक एक पिन अप है, उस लिंक पर क्लिक करो, नोटिफाई मी पे प्रेस करो, एनरोल्ड हो जाओगे। ओके,
सुजीत जी, चलिए सर नेक्स्ट सेशन में क्या क्या होगा भाई? नेक्स्ट सेशन में हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट सेशन में हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर हमारा जो है कंप्लीट हो जाए, देन हायर ऑर्डर की तरफ मूव करेंगे। चलिए चलिए चलिए, एंड करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच।